Welcome back guys, you are watching Engineer in Civil Academy YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number 5 of fluid mechanics. So this is your playlist number 5 of the fluid mechanics. So in our lecture number 3 we have studied about the surface tension. So surface tension basically is the property of the fluid in which it tries to minimize its surface area. So in drops basically what happens due to surface tension, due to surface tension drop and bubbles occupies the spherical volume or shape, because as compared to other shapes we have studied previously that if we are having different shapes having the same volume, then the sphere is having the minimum surface area, right? So spherical shape basically having a minimum surface area, right? So the next part is we will find the excess pressure inside the drop and bubble. So first we will see the drop, right? And also in our lecture number 3 we have studied that surface tension is force per unit length, right? So this is to be remembered. So for that drop we make one spherical shape. So this is your sorry this is your sphere, right? So spherical drop, and we will analyze the section and make its FBD, right? So I'm making L LHS. I'm writing here LHS and RHS of the section. This is the LHS and this is RHS, right? So here I'm making first the LHS portion. This will somewhat comes like this, and its right hand side part is will like this. This is something like this, right? So we know that the surface tension forces act on the surface. So this will be your surface tension force acting towards this side, because जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे, राइट हैंड साइड, और ये वाले मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट करेंगे LHS वाले, ठीक है? तो सिमिलरली यू कैन राइट, we know that the basic cause of surface tension is cohesion. So due to cohesion every surface particle is being pulled inside the bulb by the other fluid particles, due to which the surface gets stretched and development of the surface tension forces. So this is the way you can form. So so take any figure, and taking this figure, the equilibrium of this figure. So we know that the surface tension is sigma. The sigma is the same at every part. Here also it will remain same. So let's assume that its radius is r. So if I write surface tension forces will be
सिग्मा, दिस इज सरफेस टेंशन इनटू पेरीमीटर, जो ये इसका पेरीमीटर होगा, ये वाला, ये पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर पे ही फोर्स लग रही है ना, तो हमें फोर्स निकालनी है, तो हमें लेंथ वाला पार्ट चाहिए होगा, क्योंकि इसके यूनिट्स तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय हमें कोई लेंथ चाहिए होगी, कितनी लेंथ के लॉन्ग सरफेस टेंशन लग रही है, वो है पेरीमीटर, दैट इज 2 pi r। so this will be your surface tension force। so what will happen, जब ये सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली क्या कर रही है, ये लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला लिक्विड है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, कम, है ना, क्योंकि ये इसको एरिया इसको मिनिमाइज कर रहा है जितना हो सकता है ना, स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है वो अंडर प्रेशर होता है, कंप्रेशन, ठीक है, अंडर प्रेशर होता है, कंप्रेशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो द जो प्रेशर फोर्स है वो किसके लॉन्ग लगेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ पे ये प्रेशर फोर्स लगेगी P/A, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स बेसिकली जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर मतलब जो बाहर वाला प्रेशर है और अंदर वाला प्रेशर है उसका डिफरेंस, उसको क्या हम लिख रहे हैं, हम डेल्टा पी, ठीक है। कितना एरिया, एरिया जो भी ये एरिया बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला एरिया, इस वाली साइड पे जो एक्सेस प्रेशर लगेगा वो ये वाली साइड लगेगा, ऑपोजिट टू सरफेस टेंशन फोर्सेस, ये एक्सेस प्रेशर फोर्स, क्योंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो अंदर वाला लिक्विड है, तो ये बेसिकली क्या होगा, πr² हो जाएगा ना, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेस प्रेशर कितना चाहिए ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए, आप निकाल लीजिए, सिग्मा इंटू 2 pi r इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू πr², ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा और डेल्टा पी आपका कितना रह जाएगा, आई थिंक इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2 सिग्मा अपॉन r, स्मॉल में है कैपिटल में भी लिख सकते हैं, दैट इज एज पर योर कन्वीनियंस। so this is the excess pressure required for the drop formation, excess pressure required for drop formation। I hope you understand this concept, ठीक है। तो सिमिलरली आप, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको बबल फॉर्मेशन वाला भी इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर बबल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बबल्स के केस में इसमें दो फिल्म्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इसकी एक स्फेरिकल शेप बनाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर दो स्फेरिकल फिल्म होती है इन बबल, ठीक है, दिस इज योर बबल। तो बबल के केस में बेसिकली ये जो थिकनेस रहती है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल गैप, ड्यू टू विच हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, दोनों का जो रेडियस है वो r ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो थिकनेस है ना माइक्रोन्स में होती है, ठीक है, ड्यू टू विच वी ज्यूम दैट बोथ आर हैविंग द सेम रेडियस, दैट इज r। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम सेक्शन को काट के एनालाइज करते हैं इसका इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ एक ही बनाऊंगा, दो तो मैंने पहले में इसलिए बना दी था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें हम LHS वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
इसमें क्या होगा, जो सरफेस टेंशन फोर्सेज है वो दोनों सरफेस पर लग रही होंगी। पहले हम आउटर सरफेस पे बना लेते हैं, सिग्मा सिग्मा। तो कुछ कुछ गैप में ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सिग्मा सिग्मा। अब अंदर वाले पोर्शन पे भी आप बना लो, ये होगा सिग्मा, अंदर वाली फिल्म पे सिग्मा। ये अंदर वाली फिल्म है, सिग्मा सिग्मा इज ऑल्सो सिग्मा। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या अज्यूम किया, जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल गैप। तो इसमें अगर आप सरफेस टेंशन फोर्सेस सबसे पहले लिखेंगे, तो क्योंकि टू सरफेसेस हैं तो इसमें जो आपका सरफेस टेंशन फोर्सेस डबल हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्सेस पहले देख लीजिए। इस केस में सिग्मा इंटू टू पाई आर फॉर आउटर फिल्म प्लस सिग्मा इंटू टू पाई आर फॉर इनर फिल्म, क्योंकि आर हमने अज्यूम किया है सेम है दोनों के। तो ये बन जाएगा आपका फोर सिग्मा इंटू पाई आर। ठीक है। तो दिस इज योर सरफेस टेंशन फोर्स। और इसको बैलेंस करने के लिए आपकी जो ये प्रेशर फोर्स लग रही हैं वो इस सरफेस पे लग रही होंगी। ठीक है, वो किधर लग रही हैं, प्रेशर फोर्सेस विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अब देखो, आप इसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी लगा सकते हो, क्योंकि सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जो सरफेस टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो अंदर लिक्विड है दैट विल आल्सो ट्राई टू, है ना, apply equivalent opposite force in the opposite direction, है ना, so that the system remain in equilibrium। लिख लेते हैं, since system is in equilibrium। ठीक है। तो हम नीचे लिख लेते हैं प्रेशर फोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, डेल्टा पी सेम रहेगा जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू आप इसको इक्वल कर दीजिए, फोर सिग्मा इंटू पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको डेल्टा पी मिल जाएगा कितना, फोर सिग्मा अपॉन आर। so this is very important result for both the cases, that it for drop and bubble formation, and it is to be remembered as it has been directly asked in your MCQ। ये MCQ में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर जेट फॉर्मेशन। जेट फॉर्मेशन में आपको वैसे बता देता हूँ, अगर आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, प्लीज, है ना। आप एक बार कमेंट जरूर कर देना अगर आपको इसका प्रॉपर डेरिवेशन चाहिए। जेट फॉर्मेशन में जो एक्सेस प्रेशर चाहिए होता है वो कितना होता है, डेल्टा पी इज सिग्मा बाय आर। तो आप ये मेमोराइज कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जेट बेसिकली इसमें हम एक चीज बता देता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, इसको सिलेंड्रिकल शेप में एज्यूम करते हैं। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप पहले यहाँ पे बनानी पड़ेगी, कोशिश कर लेते हैं अगर बन जाए तो। काफी मतलब गाइड बन गया है थोड़ा सा। ठीक है। कुछ ऐसे करके बनेगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंटर से एफबीडी लेके इसका इक्विलिब्रियम बना के हम जो हमारी प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन को इक्वेट करके ये वाली इक्वेशन हमारी आ जाती, डेल्टा पी इज सिग्मा बाय आर, सिग्मा इज सर योर सरफेस टेंशन। so this is all about your drop and bubble formation। next is your wetting and non wetting nature of the liquids।
बेसिकली इसमें क्या रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड द सरफेस। तो वो डिपेंड करता है, अगर उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है लिक्विड की, तो उसमें क्या रहता है, दैट लिक्विड विल फॉर्म नॉन वेटिंग, है ना। तो उसमें जो सरफेस रहता है वो नॉन वेटिंग रहता है लिक्विड का, अगर कोहेसिव फोर्सेस आता है। अगर एडेसिव जाता है देन लिक्विड सरफेस इज वेटिंग। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कोहेसिव ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस, जो लिक्विड सरफेस कैन बी वेटिंग और नॉन वेटिंग। ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसमें हम एक इमेज देखते हैं, हमारे पास इमेज अवेलेबल रहेगी इसके लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट अवेलेबल। दिस इज योर इमेज where it works। ओके, फॉरगेट इट गाइस। इसमें हम क्या करते हैं, हम खुद बना लेते हैं, ये आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सरफेस बना लेते हैं। दिस इज योर एनी सरफेस, दिस इज योर सेकंड सरफेस। इसमें हम कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो अगर लिक्विड ए, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे, तो लिक्विड ए जो है, सपोज करो ऐसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो इस पे हम ले लेते हैं लिक्विड, जो इस पे आ रहा है वो कुछ ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, और इस केस में आ रहा है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा और इसको बेटर बना लेते हैं, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये इसमें हम एक डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल जो टेंजेंट यहाँ से ड्रा करते हैं, और ये बल्क में जहाँ पे लिक्विड का बल्क है, ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको जो बोलते हैं हम, तो ये ना थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको हम और अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एंगल सही से मिल नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है।
इसमें बेसिकली जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है ऐसे रहता है, ये बल्क में एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इस वाली साइड, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है थीटा, ठीक है, इस केस में। तो इसमें देखेंगे क्योंकि ये जो लिक्विड है, लिक्विड ए, ये बेसिकली ये सरफेस को वेट कर रहा है, क्योंकि ये वाला लिक्विड तो बिल्कुल मतलब है ना कम सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये वाला लिक्विड ऑक्यूपाइज मोर सरफेस, that means it is basically wetting the surface, or we can say it is wetting the surface। और इस केस में क्या हो रहा है, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, और आप कह सकते हैं इट इज लेस वेटिंग द सरफेस एज कंपेयर टू लिक्विड ए, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड ए है उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस है वो कम है और एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है। एडेसिव फोर्सेस बेसिकली जो सरफेस है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो कोहेसिव फोर्सेस को ओवरकम करके, उसको रूल आउट करके, उसको बेसिकली जो एडेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्सेस इन लिक्विड ए, ये लिक्विड बी है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट हैपन्स ड्यू टू एडेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें ये इसको लिक्विड सरफेस इज वेटिंग, तो इट ऑक्युपाइज मोर सरफेस। इस केस में क्या हो रहा है, इट हैपन्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस आर मोर देन एडेसिव, ड्यू टू विच है ना इट, है ना, इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड इट इज मेकिंग द सरफेस लेस वेट, क्योंकि इसकी जो कोहेसिव फोर्सेस है ज्यादा रहती है। तो अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी जो आ रहा है लेस देन 90 डिग्री आ रहा है इस केस में, लिक्विड ए के केस में, जहां पे एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है, ठीक है। और इस केस में जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, आप देखेंगे, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर आप प्योर वाटर के केस में देखेंगे, प्योर वाटर एक एग्जांपल अगर लेते हैं, प्योर वाटर के केस में जो थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 0 डिग्री है, ठीक है। और मरकरी के केस में क्या होता है, मरकरी के केस में जो थीटा आता है वो लगभग 120 से 125 डिग्री के आसपास आता है, क्योंकि ये नॉन वेटिंग है और ये प्योर वाटर वेटिंग है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल। आगे हम देखते हैं कैपिलरी राइज, इसका एक और एग्जांपल है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज में बेसिकली हम लिख लेते हैं पहले, व्हेन अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन डायमीटर is immersed in a liquid, then rise and fall of the level of the liquid inside the tube is depends upon the wetting and non-wetting nature of the fluid।
ठीक है। अगर देखो लिक्विड सरफेस वेटिंग है, मतलब लिक्विड सरफेस वेटिंग का मतलब उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है, तो उसमें बेसिकली कैपिलरी राइज होगा ट्यूब में। दैट इज इफ liquid surface is wetting, then there will be rise in the level of liquid and form what? Concave meniscus, right? उसमें concave meniscus बनेगा if view from top, अगर आप टॉप से देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी there will be fall in the level of liquid अगर adhesive forces ज़्यादा रहेंगी कोहेसिव, सॉरी, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी एडहेसिव से, दैट इज अगर लिक्विड सरफेस इज नॉन वेटिंग एंड फॉर्म कन्वेक्स meniscus if seen from top, that is in case of non wetting nature of liquid, राइट। शायद हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़ी हो, हम देख लेते हैं। हमने ये लेक्चर पहले ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसमें तो देख लेते हैं अगर यहाँ पे पड़ा हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। So this is the surface tension and yes, this is there. So first I will rub it. अगर आप देखेंगे ये वाटर ऑन ग्लास का हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है ये कम बन रहा है और यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस आर लेस देन एडहेसिव है, और इस केस में एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव, दैट मीन्स दिस इज नॉन वेटिंग लिक्विड सरफेस। तो ये देखेंगे अगर आप कैपिलरी राइज इसमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास है उसकी एडहेसिव फोर्सेस, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लगा रहा है पानी पे, जिसकी वजह से कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है, और ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से भी आप कह सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कनकेव जो मेनिस्कस बन रहा है कैपिलरी राइज में, ये कैपिलरी फॉल है, ये कैपिलरी फॉल है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा एडहेसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है अगर आप ऊपर से देखें, ठीक है। तो दिस इज कैपिलरी फॉल एंड दिस इज कैपिलरी राइज, ठीक है, दिस इज कैपिलरी राइज एंड दिस इज कैपिलरी फॉल। अगर आप राइज कितना हो रहा है इसको अगर आप एच लिखो, ठीक है, तो एच अगर आप निकालना चाहते हो तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, इसमें हम इसका, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो पानी का वेट है ये सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, इतनी इतनी शेप को, ठीक है, इस जिसकी हाइट एच है और आर हम मान लेते हैं रेडियस को, ये सिलेंड्रिकल एक जो वॉल्यूम लेके इसमें हम मान लेते हैं इसका जो भी वेट होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसको सरफेस टेंशन फोर्सेस बैलेंस कर रही है ऊपर,
तो सरफेस टेंशन फोर्सेज जो ऊपर लग रही हैं उसके वेट को बैलेंस कर रही है, जिससे हम अपना कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं। कैसे निकाला है ये नीचे देख लीजिए। सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सरफेस टेंशन फोर्सेज आर बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ राइजिंग लिक्विड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप देखेंगे इसमें जो सरफेस टेंशन फोर्सेज लग रही हैं वो एट अ कॉन्टैक्ट एंगल थीटा पे लग रही हैं। ये आपका सिग्मा है, और ये बेसिकली अगर आप टॉप पे देखेंगे तो एक सरफेस बनेगा ऐसे, सर्कुलर शेप में बनेगा जो ये फोर्सेस लग रही है। ऑल अराउंड जो फोर्सेस लग रही है उनकी क्योंकि ट्यूब जो है वो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये एंगल बना रही है इनका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, है ना, सिग्मा साइन थीटा वाला, और सारे के सारे जो कंपोनेंट है ऊपर को लगेंगे। ठीक है, जो एड अप होंगे जो मिलके बना देंगे सिग्मा कोस थीटा। ठीक है, और ये जो पेरीमीटर है इसका ट्यूब का जो रेडियस आर है और इसका पेरीमीटर 2 पाई आर है, और ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ राइजिंग लिक्विड। तो वेट ऑफ राइजिंग लिक्विड को क्या आप लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और इनटू जी कर दो तो आपका वेट आ जाएगा। डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी से आपका वेट ऑफ राइजिंग फ्लूइड आ जाएगा। तो वॉल्यूम को क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है ना, सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी वजह से ये हमने इसको लिख दिया रो डब्ल्यू पाई आर स्क्वायर एच डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, और इसको अब हम बैलेंस कर देंगे फोर्सेस को, सरफेस टेंशन फोर्सेस को और इसके वेट को। इससे आपके पास आ जाएगा एच डब्ल्यू, क्योंकि इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, सॉरी इधर वाली साइड को, तो ये आपका आ जाएगा 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन आर रो जी। हाउएवर मैक्सिमम राइज कितना होगा, अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ गया 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कैपिलरी राइज कितना हुआ है। एच डब्ल्यू इज 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर इंटू जी। तो मैक्सिमम राइज कब होगा, मैक्सिमम राइज कब होगा, जब आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा जीरो होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कोस थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी कोस जीरो, जो कि कोस जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो क्योंकि अगर यहाँ पे वन हो गया तो आपका जो एच डब्ल्यू मैक्सिमम राइज कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन, सॉरी रो आर जी नहीं, सिर्फ आई थिंक अब देख लेते हैं दोबारा से नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह गया था। यस, इट्स आर रो जी, राइट, इट्स रो आर इंटू जी। ठीक है, तो आप आर को क्या लिख सकते हो, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। फर्दर आप इसको नीचे लिख लो, मैक्सिमम राइजेस 2 सिग्मा अपॉन रो जी इंटू डी, डी को ऊपर 2 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। और रो जी बेसिकली क्या है, ये आपका यूनिट वेट है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट आपने लिखा था, यूनिट वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉइल के केस में भी हम कैपिलरी राइज लिखेंगे तो वहां पे हम यूनिट वेट लेके दे देते हैं, रो जी क्या है, गामा, वहां पे सॉइल के केस में हम गामा लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर मैक्सिमम कैपिलरी राइज। ठीक है, यूनिट वेट और फ्लूइड के केस में हम इसको लिख लेते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, रो जी इज योर स्पेसिफिक वेट इन फ्लूइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिलरी राइज, है ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। And I think this is sufficient for today, and it is not possible to discuss the rheology of fluid in this topic. I will cover it in your next part, right? So thanks for watching. I hope you like this video, and it will surely help for your college exams as well as for your competitive examination preparation. So please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.